السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسری۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ حکومت نے گزشتہ ہفتے بجٹ پیش کیا اور بجٹ میں بلند و باک دعوے کیے گئے۔ کہا گیا یہ عوام دوست بجٹ ہے، مزدور کی تنخواہ میں اضافے کا اعلان کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافے کا اعلان کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ بجٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت عوام دوست فیصلے کرنا چاہتی ہے، حکومت عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے۔ یہ ساری باتیں وفاقی وزیر خزانہ کی جانب سے کہی گئی اور حکومت کے ترجمانوں کی جانب سے بھی بار بار پریس کانفرنس کر کے عوام کو بتایا گیا کہ اس بار ریلیف والا بجٹ عوام کو دیا گیا ہے۔ دوسری جانب جو معاشی ماہرین ہیں ان کی جانب سے بھی خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف یا کسی اور جگہ سے کوئی لون نہ مل سکا تو حالات آنے والے دنوں میں خرابی کی طرف جائیں گے۔ یہ تو باتیں ہو گئی حکومت کی اور معاشی ماہرین کی۔ عوام کیا سوچتی ہے، عوام کے کیا حالات ہیں، عوام اس بجٹ کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، جو چھوٹا کاروباری ہے اس سے کیا رائے ہے، جو عام مزدور ہے وہ کیا رائے رکھتا ہے، جو عام دکاندار ہے، جو عام سیلری پرسن ہے وہ اس بجٹ کے بارے میں اپنی رائے کیا رکھتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس حوالے سے عوام کے تاثرات سے آگاہ کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین، جس طرح آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں حالیہ بجٹ کے حوالے سے، عوام سے بات کریں گے کہ عوام کی توقعات کیا تھی اور کیا توقعات پوری کی حکومت نے۔ حکومت کی جانب سے اس بجٹ کو عوام دوست بجٹ قرار دیا گیا ہے۔ کل مریم نواز ملتان میں تھی، شجاع آباد میں جلسہ کیا اور انہوں نے مبارکباد دی وفاقی وزیر خزانہ کو، پرائم منسٹر کو کہ انہوں نے ایک عوام دوست بجٹ دیا۔ آج ہم عوام کے پاس جائیں گے یہ سوال لے کر کہ کیا عوام بھی حکومت کو اس بجٹ پر مبارکباد پیش کر رہی ہے، کیا عوام بھی مطمئن ہے یا عوام ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے اور انتظار کر رہی ہے کہ کوئی اس کی زندگی میں ریلیف آئے گا۔ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں لوگوں سے کہ وہ کیا کہتے ہیں، ان کے کس طرح کے کاروبار چل رہے ہیں۔ بھجن کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے، کیسے چل رہے ہیں کام کاج ایسے ہی ہے، مناسب ہے۔ مناسب ہے۔ آپ کا یہ والا اسٹال ہے؟ نہیں، یہ دکان بھی ہے۔ آپ کی دکان بھی ہے۔ تو پہلے تو گارمنٹس کا کام اچھا ہوتا تھا، پروفٹ بھی ہوتا تھا۔ اب مہنگائی بہت ہے، لوگوں کا اپنا نہیں پورا ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، جو اب عید بھی آنے والی ہے، لوگ شاپنگ کے لیے بھی آئیں گے۔ بازار کے حالات دیکھ لو کیسے ہوئے پڑے، سنسان ہے۔ سنسان ہے بالکل۔ تو یہ پہلے بھی ایسے ہوتا تھا یا اب حالات ایسے ہو گئے ہیں؟ نہیں، پہلے ایسے نہیں تھا، اب حالات ایسے ہی ہو گئے ہیں۔ مہنگائی کے خلاف ہے سارے، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے بجٹ بڑا عوام دوست بنایا ہے۔ کہاں بنایا ہے بجٹ عوام دوست؟ اتنی مہنگائی کری جا رہی ہے حکومت کہاں کام کر رہی ہے؟ حکومت کام نہیں کر رہی۔ جی کہہ رہے ہیں کہ حکومت کام نہیں کر رہی۔ صفائی کے حوالے سے مسائل ہیں، بازار ہیں لیکن صفائی عملہ نہیں آتا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ تو یہ مارکیٹ اس وقت خالی ہے، اس میں کسٹمر کو اکا دکا کسٹمر ہمیں نظر آ رہا ہے، ورنہ ہمیں جو شاپ کیپر ہیں وہ ویسے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وجن کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کی رحمت۔ پہلے تو یہاں رش ہوتا تھا، اب کیا ہو گیا ہے کہ یہاں بیٹھے ہیں سکون سے اور ہمیں بھی انٹرویو دے رہے ہیں؟ بس مہنگائی ہو گئی ہے، کسٹمر کے پاس گنجائش نہیں ہے کہ بازاروں میں آئے، وہ کھانے تک محدود رہ گئے ہیں۔ ہاں، ان کے گھر کا نظام نہیں چلا پا رہے۔ اب یہ 30,000 روپے کرایہ ہے، بیٹھے ہیں، گاہک ہی نہیں ہے۔ آپ کا 30,000 پے کر رہے ہیں؟ صبح کی بسم اللہ بھی نہیں کی، بیٹھے ہیں یہاں۔ کوئی کسٹمر نہیں ہے آپ کا؟ کسٹمر نہیں آئی، کوئی کسٹمر نہیں آیا۔ مارکیٹ ڈاؤن جا رہی ہے؟ بالکل ڈاؤن جا رہی ہے، بس بہت پریشانی ہے۔ بجٹ آیا ہے، کوئی لگتا ہے کہ مارکیٹ بہتر ہو جائے گی؟ بالکل بہتر نہیں ہوگی، بجٹ بہت آیا ہے۔ دیکھو نا، اب انہوں نے اس کے سرکاری ملازموں کے سیلریاں بڑھا دی ہیں، ٹھیک ہے نا، عوام کے لیے کوئی سوچا نہیں ہے۔ مزدور کی 32,000 تنخواہ کر دی ہے۔ بھائی بات ہے کہ کی ہے تو اب وہ ہمارے لیے کوئی ریلیف تو نہیں ہونا۔ سبزی ہر چیز مہنگی ہے، بندہ فروٹ بھی نہیں کھا سکتا، گھی چینی مہنگی ہے، انسان روٹی تک محدود رہ گیا ہے۔ سوٹ تو بندہ سالوں سال بنواتا ہی نہیں ہے۔ وہ اب سارا دن سوچتا ہے کہ کھانا کیسے پورا کرنا ہے، کھانا کیسے ہے، مسالے لینے ہیں، کیا لینا ہے، بہت پریشانی ہے۔ روٹی کر دی، ہاں روٹی کر دی تازی، ہم روزی کماتے ہیں۔ ہمارا گھر میں ہماری خود 3 بیٹیاں ہیں، ہم گھر کا خرچہ بڑا مشکل سے لاتے ہیں۔ یہ آپ سامان بیچتے ہیں؟ ہم 11 بجے آئے ہیں ادھر، 9 بجے جاتے ہیں ادھر۔ 10-12 گھنٹے؟ ہاں ایسے گھوم کے پھر بازار میں چکر لگاتے ہیں ہم۔ مارکیٹ میں جو روٹی ہے 20 روپے کی، اگر آپ 3 4 5 روٹیاں لیں تو 3 روٹی کھائی 100 روپے کا، 150 روپے کا ہمارا ہو جاتا ہے ایک ٹائم کا۔ آپ صرف آپ کا؟ آیا ہمارا، اگر آپ فیملی کے لیے لیں گے تو اس کے لیے زیادہ پیسے چاہیے؟ پیسے زیادہ چاہیے ہوتے ہیں۔ مزدور کی حالت ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ بھائی یہ سارا دن اپنے گلے میں یہ ساری چیزیں رکھ کر فروخت کرتے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، حق حلال سے کمائی کر رہے ہیں، لیکن مجھے کہتے ہیں کہ اب جتنی محنت بھی کر لوں لیکن اس میں گزارا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ 20 روپے کی روٹی ہے، اور جب 20 روپے کی روٹی ایک عام مزدور
कैसे खरीद पाएगा, फिर वो अपने बच्चों के लिए कैसे खरीद पाएगा, तो ये आप गुफ्तगू जान रहे। हम जरा आगे चल लेते हैं, उन भाइयों से बात करते हैं। वालेकुम सलाम, वजन कैसे हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। सुनाए अभी बजट भी आया, कोई लगता है कि कारोबार बेहतर हो जाएंगे अब? कारोबार तो बेहतर नहीं है, ये कदीमी बाजार है बोर्ड गेट का, ये ईद का सीज़न है। आप एक दफ़ा निगाह मार के देखें, यहाँ पे इतना रश होता था, भीड़ होती थी। जब से महंगाई हुई है लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, कपड़ा देख के चली जाती हैं चुप करके, उनका भी कसूर नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, गुजर रहे हैं, वो भी बस ये बस अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम चल रहा है। बाकी जो कारोबार है ना वो ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो, ना कमाई है, सेल नहीं है। सेल नहीं है, फारिग बैठे हैं। इन दिनों में रश होता था, ग्राहकों को भगा रहे होते थे, बीबी इधर से आ जाए उधर से आ जाए, कपड़े नहीं है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है बाजार। कुछ भी नहीं है। ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, आप सुने क्या हाल है? पहले तो होता था कि आप बोहरगेट में शॉप मिल गई है, अच्छी मिल गई है, ओपनिंग होती थी, लोग खुश होते थे, फ्रंट पे दुकान मिल गई है, लेकिन अब बैठे हैं सुकून से, क्या वो वजह? बुरे हालात हुए हैं, जब से महंगाई बढ़ी ना बहुत बुरे हालात हुए हैं। क्या करें, अभी सुबह से ऐसे ही बैठे हैं। कस्टमर आना ही पसंद नहीं कर रहा अंदर। कस्टमर जो आता है पसंद कराते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, तो रेट बहुत हुए हैं, वो बेचारे क्या करें। वो कहते हैं कि कीमत कम करें। कम करें, अब जो हमारा रेट आया तो उससे भी रेट कम लगाते हैं। फिर हम देखें ना, फिर इस तरह तो नहीं बात बनेगी। फर्ज के आपने 500 रुपए का खरीदा है, अगर वो कहते हैं 400 रुपए का, तो आप कहते हैं भाई मैं कैसे 400 का दे दूं? जब तक किसी दुकानदार को 150 ही नहीं बचेंगे इन हालात में, तो वो किस तरह देगा। पहले ईद का सीजन होता था, भाई कह रहे हैं कि पहले तो बैठने की जगह नहीं होती थी। बैठने की जगह नहीं होती थी, रश इन दिनों में तो अच्छा काम होता था। पिछले साल, अगर पिछले साल भी आप जाएंगे ना तो अच्छा काम होता था। इन दिनों तो ये है कि सुबह से अभी तक फारिग बैठे हैं, अभी तक कुछ भी नहीं है। अभी तक कुछ भी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि सुबह से फारिग बैठे। ये दुकान भी हम दिखा दें आपको कि यहाँ कोई कस्टमर नहीं है, दो जो शॉपकीपर हैं, दुकानदार, वो बैठे हैं, तो इसलिए अंदाज़ा लगा लें कि सामान इसमें है लेकिन कस्टमर नहीं है, तो कस्टमर कैसे आएगा? वो ये कहते हैं कि महंगाई इतनी ज़्यादा है। जी आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम ज़रा आगे चलते हैं। क्या हाल है आपके? बदुआ भाईजान। अभी जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, लगता है कोई बेहतरी की तरफ जाएगा मुल्क, हो आवाम तरक्की करे, खुशहाली आ जाए? होंगे तो फिर होगा भाईजान, इलेक्शन होगा तो फिर पता चलेगा। ऐसी नहीं है, कहाँ से इलेक्शन कैसे हों, पैसे होंगे तो कराएंगे ना। पैसे ये पहले भी कर्ज लेते, अभी कर्ज लेंगे। हाँ ऐसे कर्ज लेके इलेक्शन करा दें, जी, इलेक्शन होने चाहिए, तो उसके बाद कोई बेहतर हो जाएगा। बेहतर हो जाएंगे, फिर कर्जा लेंगे, फिर चलेंगे। अभी जो बजट दिया, वो कहते हैं बहुत आवाम दोस्त बजट दिया। मरियम साहबा कल आई थी शुजाबाद, उन्होंने कहा कि मुबारकबाद हो आवाम को, हमने 35% मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा किया, आम मजदूर के लिए 32,000 तनख्वाह कर दी। मुतमिन है आप लोग? कोई तनख्वाह नहीं दे रहे भाईजान, सब वही चल रहा है, ऐसे ही है, खाली ज़बानी बातें, जुबानी खिलाफ। सरकारी कागज काले हो गए, हाँ ऐसे ही कुछ है, आवाम को कुछ नहीं मिला। आवाम को कुछ नहीं मिला। घी सस्ता हुआ है? हाँ घी सस्ता हुआ भाईजान, कुछ तो मुबारक हो। हाँ मुबारक हो। 40 चिकन 50 रुपये किलो घी कम हुआ है, चिकन चिकन नहीं हुआ, कम हुआ, और आटा आटा कम हुआ है। आटा भी कम हुआ। आटा ये दो चीज़ें वो कह रहे हैं कुछ कम हुई हैं, जो कि खुशाइंद है, मज़ीद भी कम होनी चाहिए, ताकि जो इस हवाले से आवाम है उसको रिलीफ मिल सके। हम ज़रा आगे भी चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आवाम से बात कर सकें और उनसे जानने की कोशिश करें कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। इनसे बात करते हैं। वजन क्या हाल है आपके? आपकी दुआएं। आज हम बात करें मौजूदा सूरत हाल महंगाई के हवाले से। अभी बजट आया है, को लगता है कि आम आदमी, आम मजदूर, आम जो शहरी हैं, उनके लिए भी हुकूमत ने कोई हिस्सा रखा है या बस खाली बजट तकरीर की गई है? खाली तकरीर की गई है, कोई बजट की कोई तैयारी नहीं है, यानी कि कोई गरीब आदमी कोई मुस्तकबिल नहीं है यहाँ पे। नहीं है, यानी कि तो आपने माशरे इतनी हुकूमतें देखी हैं पहले भी, अब ये हुकूमत भी देख रहे हैं, क्या फ़र्क देखा है? कोई लगता है हुकूमत मुल्क बेहतरी की तरफ जाए? देखो जी, बेहतरी तरफ जाएगा जबकि बात तो एक अलग बात है, लेकिन महंगाई का बहरान बहुत है। महंगाई की वजह से हर आदमी परेशान है। आम आदमी को मसला महंगाई से है। महंगाई से है ज़्यादा, महंगाई का बुरान है, तूफान है, मसला आवाम को महंगाई से है और इस हवाले पर किसी की तवज्जो नहीं है। भजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। कैसे चल रहा है काम? काम तो सर स्लो ही है। काम स्लो है? हाँ जी, काम तो अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, मुल्क की हालात ही स्टेबल नहीं हो रहे। गारमेंट्स का काम मैंने पहले भी लोगों से पूछा, कहते हैं काफ़ी बेहतर होता था, लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ है कि अब लोग कपड़े खरीदना पसंद ही नहीं कर रहे। महंगाई देख रहे हैं ना आप किस कदर बढ़ रही है। महंगाई के पेश नज़र जब रोटी कपड़ा नहीं होगा लोगों के पास, तो खाने को कुछ नहीं होगा, कपड़ा कहाँ से लेंगे? ईद का सीज़न है, ईद के सीज़न में तो लोग बाहर चढ़ कर शॉपिंग करते हैं। सर्वे कर लें, विजिट कर लें, देख लें बाजार ऐसे पड़ा हुआ खाली, जैसे क्रिकेट मैच खेल लें आप यहाँ पर। कुछ इतनी गुंजाइश बची हुई है इस मार्केट में पाँव रखने की जगह नहीं होती थी और अब यहाँ बंदा नहीं नज़र आ रहा, देख लें आपके सामने। तो ये हालात कब तक मुतवक्किल हैं कि ऐसे रहेंगे? इसका एक ही हल है, इलेक्शन करवाएं,
जो मुंतखब हुकूमत होगी, इंशाल्लाह जो न्यू हुकूमत आएगी, फिर उसके बाद जाके कुछ मईशत मजबूत होगी, उसके अलावा इधर कोई भी रास्ता नहीं। शॉर्ट कट लगा रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं है। कुछ भी नहीं होना सर, कुछ भी नहीं होना। कहने के इलेक्शन कराएं, जो भी हुकूमत बने, आवाम जिसको भी मुंतखब करे, उसके बाद ही कुछ बेहतरी की तरफ हालात बेहतर हो सकते हैं, वरना ऐसे ही हालात रहेंगे। हम ज़रा आगे चलते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त आपको हम मार्केट की सूरत हाल दिखा रहे हैं और हमने कोशिश की कि लोगों से बात करें और उनसे मौजूदा हालात के बारे में जान सकें कि आवाम मौजूदा हालात के बारे में क्या कहती है। लेकिन लोग मुतमिन नज़र नहीं आ रहे, वो कहते हैं कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है और जो सेल है वो ना होने के बराबर है। हम ज़रा कोशिश करेंगे इनसे भी बात करें कि ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र। ईद का सीज़न होता था तो यहाँ पे काफ़ी रश देखते थे। आपने तो सामान भी मंगवा रखा है लेकिन कस्टमर नज़र नहीं आ रहे, सबका यही हाल है? जी सर, सबका ये हाल है। इस साल तो पता ही नहीं हो चल रहा है कि क्या हो रहा है। माल भी मंगवाया है, दुकान की फुल तैयारी भी की हुई है, इसी आस में बैठे हुए कस्टमर आए, लेकिन सुबह से ऐसे ही बैठे हुए कस्टमर आ रहा, कोई आता है, कोई जिसकी गुंजाइश नहीं होती बेचारे की, रेट नहीं लगाता है, और महंगाई पीछे से इतनी हुई खड़ी है कि पूछो मत। आप कह रहे हैं कस्टमर अगर आ भी जाए तो वो जो रेट लगाता है वो आप सुन के ही परेशान हो जाते हैं कि आप मैं कैसे दूं इसमें? उनके परेशान हो जाते हैं। भैया एक चीज़ है वो 1500 की है, कस्टमर की गुंजाइश नहीं बेचारे की, वो 700, 800, 900 की, वो तो उसकी तो जाहिर बात है कि महंगाई इतनी हुई खड़ी है और पीछे से रेट इतने बढ़े हुए हैं, दुकानदार भी बेचारा क्या करे अब। अभी बजट दिया है, कोई लगता है कि बजट के आने के बाद अब आ तो गया है बजट, कोई बेहतरी की तरफ मुल्क चल जाएगा? सर मुझे नहीं लगता बेहतरी की तरफ चल जाएगा। पिछले कोई बहुत सालों से सुन रहा हूँ कि बेहतरी की तरफ चल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग पाता कि ऐसा हो पाएगा। आपको कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही? मुझे कोई बेहतरी नज़र आ ही नहीं रही है, अभी तक कोई बेहतरी नहीं है, तो बेहतरी कैसे नज़र आ जाएगी आप खुद बताएं। चंद महीनों में, अगले चंद महीनों में क्या, इमरान खान साहब की हुकूमत में ऐसा नहीं हुआ तो इसकी हुकूमत में ऐसा कैसे हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि बेहतरी नज़र आएगी। आवाम को कुर्बानी देना होगी जैसे पहले दे रही है। जी, आवाम सोई हुई है, आवाम जाग नहीं पा रही है, आवाम सोई हुई है, इतनी सोई पड़ी है कि हमारे साथ इतने जुल्म हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है, उसको पता ही कुछ नहीं है। देखें अब लाइटिंग है, बिल है, अखराजात हैं, अभी देखो लाइटें देख रहे हो आपने, हमने बंद की हुई हैं, इसलिए बंद की हुई हैं कि बिल इतना आ रहा है। अब बिल जो है ना, अब जहाँ पर बिल आता ना हमारी शॉप का कि 5-7 हज़ार का बिल आता था, 15,000 16,000 का बिल आ रहा है। 15,000 का बिल निकालना है, फिर किराया निकालना है, फिर आपने स्टाफ की तनख्वाह निकाली, लड़कों के खर्चे हैं, हमारे अपने खर्चे हैं, अखराजात हैं, कहाँ से निकालें? अब कस्टमर आएगा तो निकालेंगे। आएगा तो ये चीज़ें निकलेंगी। ये बिल्कुल एक जेन्युइन सवाल है और ये कह रहे हैं कि हम कैसे जिस सारे सेटअप को चला सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि अभी कोई हमें मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं। बजट ज़रूर आया है, हुकूमत ने इसको अवाम दोस्त बजट भी करार दे दिया है, लेकिन मार्केट जब तक बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी, जब तक डॉलर का रेट कंट्रोल में नहीं आएगा, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी, इम्पोर्ट कम होंगी और जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है वो नहीं उठेगी, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, तो फिर कैसे बेहतरी आएगी? कैसे रोज़गार के मौके बनेंगे? कैसे लोगों की जेबों में पैसे आएंगे? कैसे लोगों की इनकम में इजाफा होगा? कैसे मजदूर की दिहाड़ी में इजाफा होगा? ये सारे सवाल आवाम अपनी हुक्मरानों से पूछ रही है। हम मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें बजट के हवाले से और पब्लिक का जो रद्दअमल है वो आपके सामने रख रहे हैं कि हालिया बजट के हवाले से अवाम का क्या रद्दअमल है। गवर्नमेंट सेक्टर में मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, पेंशन में इजाफा किया गया, उसके साथ साथ जो टैक्सेस में हमने पहले माजी में जो देखा कि जो चीज़ों में इजाफा हुआ, इस बार कदरे कुछ बेहतर बजट रहा है। हम ज़रा लोगों की ज़बानी जान लेते हैं कि आम आदमी को कितना फ़ायदा हो सकता है उससे, और वो उसके बारे में क्या कहते हैं, ज़रा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है भाईजान, दुआ है। कैसे चल रहा है काम काज? काम भाईजान खत्म हो गया बिल्कुल। चिकन बहुत महंगा हो गया। चिकन बहुत महंगा हो गया, पीछे से मिल रहा नहीं भाईजान, चिकन बहुत बुरे हालात। अभी जब जून का महीना लगता था तो चिकन की कीमतें कम हो जाती थी, अब तो समझ नहीं आ रही कहाँ जा रही हैं कीमतें। इनकी खुराक नहीं मिल रही चिकन की, जो उसकी जो खुराक है वो बाहर से आ रही नहीं है, इसकी वजह से रेट फुल ऊपर गया हुआ है। मजीद रेट और ऊपर जाएगा इसका भी। इस वक्त कितने में चल रहा है सरकारी रेट? भाईजान सरकारी रेट 620 रुपये है। 620 का सरकारी रेट, मार्केट में 650 तक होगा। जी सर रेट है भाईजान 650 रुपये। तो जो बड़े गोश्त है वो भी तकरीबन मिल जाना था। बड़े गोश्त भाईजान 800 रुपये बिक रहा है। जो 800 हो गया, वो भी 50-100 रुपये महंगा हो गया। महंगा हो गया भाईजान वो। तो फिर लोगों के लिए तो पहले कहा जाता था कि आम आदमी की खुराक है, जो तनख्वाहदार तबका है वो 300-400 रुपये किलो मिलता था, आधा किलो ले लिया गुजारा हो जाता था। गरीब आदमी मर गया, क्या चाहिए? जो जिसने कमाने 500 वो अपना बिजली का बिल भरेगा, घर का बिल भरेगा, क्या क्या करेगा 500 में वो?
एक दिन काम लगता है, 6 दिन नहीं लगते। अभी बजट दिया है, कहते हैं कि बजट कुछ बेहतर दिया है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाई है, उसके साथ साथ कहा है जो आम मजदूर है उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी है। भाईजान बजट तो निकाल दिया पर चीज़ें तो सस्ती हो, ऐलान करा खाली का चीज़, हर चीज़ वैसी है, मुर्गी महंगी है, सब्जी घी दालें हर चीज़ वही रेट की है। अभी तो ऐलान करा ना कि चीज़ प्रैक्टिकल नहीं होगा, अमल दरामद नहीं होगा। में वही घी गिरा 550-600 रुपये किलो घी गिरा, आटा 130 रुपये किलो मिला, चीनी 120 रुपये मिला, किस चीज़ का रिलीफ दिया है? रिलीफ तो होता है ना जिसका कम होता है भाईजान। अब गरीब आवाम के लिए क्या रिलीफ है? चाय की डब्बी 20 की थी वो 30 ही कर दी है। आप ये भी देखो ना, कोई रिलीफ नहीं दिया। जो हम चीजें ऐलान करा है, ऐलान यानी कि गरीब आदमी तो पीछा पड़ा है, यकीन मानो। ये कह रहे हैं कि जब तक चीजों पर अमल दरामद नहीं होता तो ऐलानात का कोई फायदा नहीं है। चीजें सस्ती करके दिखाए हुकूमत, चीजों के रेट कम आए, तब कहा जाएगा कि ये बजट अच्छा है, अवाम दोस्त है, अवाम को फायदा है। ऐलानात करने से खाली वो ये कह रहे हैं लोग कि उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि चीजों के रेट तो अभी तक वहीं के वहीं चल रहे हैं। हम जरा इस भाई से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? आपकी भाईजान कैसे चल रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है। क्या क्या सेल कर रहे हैं आजकल? शामी है, चिकन बिरयानी है, चिकन बिरयानी होती है, शामी होती है। चिकन तो भाई बहुत कह रहे हैं कि महंगा बहुत हो गया। महंगा वही तो महंगा है, पर हर चीज पे आग लगी पड़ी है। अब क्या करे, गरीब बंदा क्या खाएगा? चावल कितने रुपए किलो मिल रहा है? चावल 350 रुपए किलो है पड़ा चावल। आपने प्लेट बढ़ाई होगी तो फिर सेल कैसी जा रही है? वही तो सेल कम हो रही है उल्टा, और बचत है नहीं। बचत नहीं। ये भाई यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, हमने कहा कि जरा इनसे भी पूछ लें कि इनके कैसे हालात चल रहे हैं। हम थोड़ा आगे चल लेते हैं, उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र जनाब। आप क्या करते हैं? मेरी सब्जी की शॉप है सर। अच्छा, आप सब्जी, कुछ सब्जी टमाटर यार महंगा हो गया, फिर महंगा हो गया, प्याज भी महंगी हो गई है तकरीबन। कल तक ये 20 रुपए किलो मिल रहा था, अब ये 100 तक पहुंच गया। वो फसल अब जब ज़्यादा आ रही थी ना फसल, तो वो टमाटर मुल्तान का खत्म हो गया, अभी टमाटर आ रहा है बाहर का, इस वजह से महंगा हो गया है। तो ईद पे तो और महंगा हो जाएगा, तकरीबन 100-150-200 रुपये किलो के करीब हो गया। और प्याज भी इतना हो जाएगा। प्याज भी महंगा हो जाएगा ईद पे। अभी कोई बजट आया, कोई लगता है कोई आवाम को भी फायदा होगा इससे? आवाम को जो मुश्किल है, इतने बिल आ गए हैं बिजली के, अब भी इतने ज़्यादा 25,000 के हमारे घर के बिल आ गए हैं। 20,000 क्या इस्तेमाल किया? सारा दिन तो आप दुकान पे होते हैं। 25, 23-24,000 रुपये का बिल आया पड़ा रात को, कल घर का बिल आया। हाँ जी। तो आपने कहा नहीं कि भाई इतना किस खाते में, कोई एसी वगैरह लगाए हुए हैं? नहीं, एक कूलर वगैरह चलते हैं, एसी का एसी तो लगा ही नहीं रखे, घर एसी है ही नहीं हमारे पास। फिर 25,000 आ गया। 25,000 रुपये का बिल आ गया है एक महीने का। जितनी कमाई नहीं है जितना बिल आ गया। 1,000 रुपये रोजाना की तो बिजली पड़ गई है जी, बिल्कुल। हाँ, अब कहाँ से भरे इतने? जी, आम आदमी क्या आप है? कम हुआ था तो 1 रुपया 60 पैसे बिजली का रेट बढ़ा दिया उन्होंने, वहाँ का कसर वहाँ खाता पूरा कर दिया। खाता बराबर कर दिया उन्होंने पूरा। कान को यहाँ से पकड़ लो, यहाँ से, बात तो एक ही है। ये आप अंदाजा लगा लेंगे, आप लोगों को ये चीज़ें समझ हैं, वो ये नहीं है कि आम आदमी से जब हम पूछते हैं तो उसे सब कुछ पता होता है। क्या हाल है जी आप? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा कर्म, मालिक का बड़ा। बजट चंद दिन पहले कैसा लगा है कि इस बार हुकूमत ने हल्कात रखे? हुकूमत का तो ये सिस्टम है जी, खान साहब गए, खान साहब ने तो पैकेज दिया था कि गरीब मुकाओ। अब अगर शहबाज शरीफ साहब कुछ देते हैं, कोई नए पैकेज आवाम के लिए, तो बनाए कि गरीबों को बनाओ, गरीबों को बनाओ। और जैसे इन्होंने पैकेज दिया था वोट को इज्जत दो, तो ये इनको देना चाहिए, गरीबों को इज्जत दो, तो फिर तो ये आगे चलेंगे। अब आप ये देखें, बजट देखें, बजट आया तो बोल रहे हैं भाई बजट में ये करना। मेन चीज़ ये देखें, सबसे पहले दाल, आटा, चीनी, अगर ये इसको कोई आवाम को पैकेज मिलता है तो फिर आवाम इस बेस पे बैठी है कि हमने वोट देने ही नहीं है। जिस दिन वोटिंग होगी हम घर से नहीं निकलेंगे। आप कह रहे हैं कि अगर ये चीज़ें सस्ती नहीं हुई तो आवाम बाईकाट की तरफ जाएगी? बाईकाट की तरफ तो जा चुकी है 50%। हाँ, अब उनका ये प्रोग्राम है, अगर कोई आवाम, कोई वज़ीर साहब अगर कोई पैकेज देते हैं तो ये दें पैकेज, गरीबों को उठाओ, गरीबों को बनाओ। हाँ, ये खान साहब ने जो पैकेज दिया था, जो मुल्क संभालो कहा था, अब गरीब को संभालना है, तभी जाकर समारोह तो कुछ काम होगा सरकार। लेकिन लगता है कि हमारी हुकूमतों के पास इतने पैसे हैं कि वो गरीब पर, आम आदमी पे खर्च कर सकें। नहीं, खर्च करना चाहिए, अगर ये खर्च करेंगे तो आगे से कमाएंगे। खजाना खाली है, कहाँ से खर्च करें? खजाना तो ये तो कब से कह रहे हैं खाली है। डैम का कितना पैसे आया, ये जो आपके सामने ये कितना वायरस तरह तरह के वायरस आए। यार वो तो लगा भी है ना, वो तो हॉस्पिटल बने हैं, मरीजों को वैक्सीन लगी है, सारा कुछ हुआ है। मेरी तो यही अपील है वज़ीर आज़म साहब से, वो यही कहें कोई गरीब के लिए कोई अच्छा सा पैकेज बनाए तो ये आवाम बाहर आएगी, वोट देगी। हाँ, आवाम तब भी बाहर आएगी जब अच्छा सा पैकेज बनाएंगे गरीब के लिए। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, क्या करते हैं आप? बस की डेकोरेशन का काम करता हूँ। सुनाए, कोई आप सर्कुलेशन का काम है, कोई डिमांड मार्केट में है आपके काम की, या मार्केट कम हुई है? काम स्लो है, बहुत ही स्लो है, अपनी दिहाड़ी भी पूरी नहीं निकल रही। वो कहते हैं अब शादियों का सीजन नहीं है इसलिए स्लो है। नहीं, शादी के सीजन में फिर भी काम, सामान लेने नहीं आते, कह रहे इतनी महंगा है, क्या कहाँ से ले हम? आप कहते हैं सामान सस्ता होगा तब जाकर डिमांड भी बढ़ेगी। हाँ जी, ऐसे कोई डिमांड ही नहीं बढ़ते। हाँ, ये पहले आता था, ये फ्लावर 15 रुपए का पैक, 12 पीस होते थे इसमें,
اب یہ آگے سے 50 روپیز کا پیک آ رہا ہے تو پھر بندہ کیا سیل کرے گا؟ اور صبح سے بیٹھے ہیں 450 روپے کی سیل کیے خالی ابھی 450 روپے صرف اونلی 450 روپیز. ہاں اونلی 450 روپیز کی سیل ہوئی ہے. اب جس میں 6 لیبر ہے اور لیبر کی کم سے کم تنخواہ ہے 700 سے 800 روپے تک. اب بتلائیں ہم کیا کھائیں گے, انہیں کیا کھلائیں گے؟ اب یہ صبح سے انتظار میں بیٹھے ہیں کب کسٹمر آئے. ہماری دیکھو آنکھیں دیکھو صرف وہاں گیٹ کے اوپر پڑی ہوئی, وہاں دیکھیں ہماری ہم یہ اس انتظار میں کب گاہک آئے, کب کسٹمر آئے, اسی چکر میں بیٹھے. ہم ساتھ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کسٹمر کہاں سے آئے گا. ہم ذرا یہاں بھی جاتے ہیں, یہ بیگس وغیرہ کی شاپ ہے, ذرا ان سے جانتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. بھائی جان کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر, کیسے چل رہا ہے کام کاج؟ بس صحیح ہے, اللہ کا شکر ہے. قیمتوں میں کمی ہوئی ہے بیگس کی یا اضافہ ہوا ہے؟ بڑے ہی ہیں پہلے کی نسبت. اچھا تو پھر ان میں اضافہ ہوگا تو سیل کیسی ہے آپ لوگوں کی؟ اب سیل ظاہری سی بات ہے, جب قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو اس میں کمی ہوگی, ظاہری سی بات ہے. ابھی تو اسکولوں کی چھٹیاں ہیں, والدین آئیں گے ایک آدھے مہینے تک, تو پھر تو وہ آگے شکوہ کریں گے کہ یار پہلے اتنا تھا اب اتنا کر دیا. ویسے جو کسٹمر آتا ہے وہ یہ گلہ کرتا ہے. تو ان کو بھی تو اندازہ نا مہنگائی کا کہ اب کتنے کی چیز. وہ تو یقیناً ہر کسی کو نہیں, لیکن کسٹمر ڈیمانڈ کرتا ہوگا کم کرو. ظاہری سی بات ہے, وہ بھی کہتا ہے کہ پہلے چیز اتنے کی تھی اب اتنے کی ہو گئی ہے, تو کچھ اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیتے ہیں, کچھ خود کم کر دیتے ہیں, خود جیسے وہ کہتا کر دیتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ قیمتیں تو یقیناً اضافہ ہوا ہے قیمتوں میں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اس حوالے سے ہے کسٹمر ہے وہ بھی آ کے اس کے بعد جا کر ہم ایک جگہ پر جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کتنی قیمت لینی چاہیے. جی اس وقت آپ صورتحال جان رہے ہیں لوگوں کی زبانی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں ابھی تک وہ تیزی نہیں آئی, بہتری نہیں آئی. ہاں قیمتوں میں تیزی ضرور ہوئی ہے, لیکن عوام کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی فائدہ, عوام دوست فائدہ نہیں ہوا عوام کو. وہ جب تک قیمتوں میں کمی نہیں ہوگی تب تک وہ کہتے ہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. یہ کیا صورتحال ہے؟ ہم ذرا آگے بھی چل لیتے ہیں اور مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں, اور جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں. ہم ذرا ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے جناب. پرسوں 2-3 دن پہلے بجٹ آیا ہے, حکومت کہہ رہی ہے عوام دوست بجٹ ہے. اس بار ہم نے عوام کا بہت خیال رکھا ہے, سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں, زیادہ ٹیکس اس پچھلی والے نہیں لگائے. تو کیا لگتا ہے عوام دوست بجٹ تھا؟ ابھی تو کوئی ابھی تو آٹا جیسے کہہ رہے ہیں 100 روپے کلو ہو گیا ہے, وہ بھی نہیں دیا, ابھی تو دے ہی نہیں رہے. اور گھی کہہ رہے ہیں 380 روپے کہہ رہے تھے, وہ بھی نہیں ہویا. دکاندار تو وہی ریٹ دے رہے ہیں ابھی تک. آپ کہتے ہیں کہ جب تک آٹا گھی یہ چیزیں سستی نہیں ہوں گی تب تک کوئی عوام دوست بجٹ نہیں ہے. نہیں, تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے کہ جس چیز کو میں اضافہ ہو جائے واپسی مشکل ہوتی ہے. بہت مشکل ہے. جو چیز بڑھ گئی ہے نا وہ کم نہیں ہوتی. کہتے ہیں ہم روس سے تیل منگوا رہے ہیں تو اب پیٹرول ڈیزل کم کریں گے. ابھی تک تو کم ہوا, صرف بڑھائے تو 40 روپے تھے, کرے 8 روپے کم. اور پمپ پہ جاؤ تو وہاں پہ 262 کا نہیں 64 روپے ہے, 64 روپے 80 پیسے دے رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کم سے کم کتنا پیٹرول کم کرنا چاہیے؟ اب جی کہتے ہیں رشیا سے ہم منگوا رہے ہیں, کتنا کم کریں؟ کم سے کم 150-200 روپے تو ہونا چاہیے کم سے 150 روپے لیٹر یا کم لیٹر. جی کم سے کم اتنا تو ہونا کہ بھئی عوام کو فائدہ تو ہو. ابھی مارکیٹ میں 40 روپے لوگ, جب بھی 4 روپے ہوگی, کاروبار ہے نہیں, ہر چیز پیٹرول کے اوپر رکھ دیتے ہیں. جی مہنگی ہے کہ جی پیٹرول سے خرچہ ہوتا آنے جانے کا, لے کے آنے کا. اب یہ لڑیاں آتی ہیں ہماری مظفر گڑھ سے, وہ کہتے ہیں جی یہ پیٹرول مہنگا ہے, 10 روپے مہنگا ویسے 10 روپے بڑھاؤ جی لڑیوں پہ. اب گاہک کم یہاں بتاتے ہیں 200 روپے درجن, وہاں سے لے رہے 190 روپے درجن. 10 روپے کا 10 پروفٹ. روپے کے اوپر پروفٹ تو نہ ہوا, وہ تو آپ کے خرچے ہوں گے. بس. اب گاہک پھر بھی نہیں کہتا 150 لو, کیا کریں. میں نے اس بھائی سے یہ بات کی, وہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ ہیں, ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کسٹمر اس روڈ پہ کب آئے گا, راہ تک رہے ہیں. یہی حال ہو رہا ہے, بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. لگ رہا ہے کہ حالات کوئی بہتر بھی ہو جائیں گے. نہیں ہوتے جب تک ہماری حکومت صحیح نہیں ہوگی. حکومت صحیح نہیں ہوتی, عوام دوست پالیسی نہیں بناتی, تب تک حالات تو کہتے ہیں کہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. ہم ذرا ان لوگوں سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. بھائی جان کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک. کیسے چل رہے ہیں کام کاج؟ بالکل ہی ٹھنڈے ہیں, سکون سے بیٹھے ہیں. ہاں جی. کھانے پینے کے تو اچھے حالات تھے, روٹی آٹا کھانا. جیب میں پیسہ نہیں ہوگا, کھائیں پیئیں کہاں سے. ہاں جی. لگتا ہے کوئی بہتری بھی آ جائے گی یا ایسے ہی چلے گا نظام؟ مشکل ہے. مایوسی کیوں ہے؟ جب پیسہ نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے. زندگی میں مشکل ٹائم آ جاتے ہیں, لیکن بندے کو امید ہوتی ہے کہ چلیں یار 6 مہینے مشکل ہیں, 8 مہینے, لیکن اللہ کرے گا حالات بہتر ہو جائیں گے.
हमारी ज़िंदगी में तो मुश्किल है, हमें तो यही नज़र आ रहा है। ये हुक्मरान जो बनते हैं कहते हैं कि आवाम को बेहतरी की तरफ ले आएंगे, गुर्बत से निकालेंगे, तो ये गुर्बत से निकालने का फार्मूला इनके पास नहीं है। वो खुद गुर्बत से निकलते हैं, हमें नहीं निकालते। हाँ, वो एक आधा खानदान खुद निकल जाता है आगे और पीछे बाकी आवाम वैसे की वैसी रह जाती है। साफ ज़ाहिर है वैसे के वैसे ही है। देख लो, किसी का कारोबार है, सब वेले बैठे हैं, किसी का कारोबार नहीं है। ऐसे ही है भैया। खाने पीने का काम तो यही है ना, कुछ है भी नहीं। खाने पीने के बारे में कहा जाता था कि अच्छा काम है, प्रॉफिटेबल काम है, इसमें मजदूरी मिल जाती है। भाई कोई और तो कोई काम समझ आती है, खाने पीने का काम है, चलो वो नहीं है, ये खाने पीने का काम ही नहीं है। ये भी काम नहीं है। तो अगर पैसा होगा तो आवाम को खाए पिएगा। ये तो महंगाई है, किस चीज़ कुछ कितने की चल रही है आजकल? रोटी 20 की 25 की चल रही है, खमीरी है वो 25 की, सादा 20 रुपए की। लाजमी बात है कि मजदूर तो 5 रोटियां लेगा तो 100 तो यहाँ गया उसका। अगर और की तनख्वाह बढ़ती है, मजदूर की तनख्वाह तो वही है ना, 1000 रुपये खड़ी है ना। हुकूमत ने तो 35% सरकारी मुलाजमीन के बढ़ा दी। वो ये कहते हैं कि मजदूर की तनख्वाह यही है। सरकार ने अपने कागज काले किए हैं और लिखा है कि मजदूर की तनख्वाह 32,000 रुपये होगी, लेकिन 32,000 देगा कौन मजदूर को? 8 घंटों की मजदूरी वो तो मुश्किल से 700-800 रुपये उसको मिलती है। तो अब हमने जिससे भी बात की तो वो कहते हैं 32,000 वाला कंसेप्ट मार्केट में नहीं है। सरकारी कागजात में ज़रूर लिखा जाएगा कि 32,000 पाकिस्तान के बासियों को जो आम मजदूर है उसको मिल रही है कम से कम वेजेस, लेकिन ये मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है इन अल्फाज की, क्योंकि वो ये कहते हैं कि जो कमा रहे हैं उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने मजदूरों को इतनी मजदूरी दे सकें। हम मजीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने अवाम की तासुरात जाने। हमने लोगों से बात की, हमने दुकानदारों से बात की जो शहरी मार्केट में आ रहे हैं शॉपिंग के लिए। हमने उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि जो अभी हालिया बजट आया है अवाम उससे मुतमिन है या फिर अवाम अभी महंगाई की चक्की में पिस पिस कर परेशान हाल है। तो लोगों का जवाब यही है कि कुछ हद तक घी की कीमत में कमी हुई, आटे की कीमत में कुछ हद तक मामूली कमी हुई, लेकिन ये कमी काफ़ी नहीं है। अगर हुकूमत चाहती है कि आवाम को फ़ायदा मिले, आवाम को रिलीफ मिले, तो शायद खुर्दनोश की कीमतों में कमी करना होगी। हम ज़रा और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अभी कोई 38 रुपए कम की थी एलपीजी, कहा था कि 197 रुपए किलो मिलेगी, तो मिल भी रही है 197 की? नहीं, 210 रुपये मिल रही है सर। चलिए कुछ कम हो गया है अभी। हाँ जी 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 सर। मार्केट अब पहले जो 240-250 रेट था अब 210 पे आ गया है। 210 पे आ गया है, पहले 320-340 बिक्री थी, अब 210 पे आ गई है। महंगाई टूट गई है, अब कुछ फर्क पड़ गया है। आप कहते हैं कि फर्क पड़ गया है और आने वाले दिनों में मजीद फर्क आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत तो यह है कि महंगाई इसके आने से कि महंगाई टूट गई है, तो पहले तो अरूज पे चल रही थी, ठीक है, तो अब मजीद और इम्कान है कि महंगाई सुनना है कि वो टूट जाएगी। ठीक है। आप कहते हैं मजीद कम हो जाए तो बेहतर हो जाएगा। हाँ, रोजगार बेहतर हो जाएगा, खुशहाल रहेंगे आवाम। कहते हैं आवाम खुशहाल रहेगी। कुछ कम हुई है महंगाई, लेकिन मजीद कम हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, आवाम खुशहाल हो जाएगी, आवाम के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि महंगाई कम हो। एक और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हम देखते थे कि काफ़ी रश होता था, अब आप भी मोबाइल पे गेम खेल रहे थे, हम भी स्कूल से आ गए और आपसे बात कर रहे हैं, तो ये हालत कब से है? ये काफ़ी दिनों से ऐसे ही चल रहा है, क्या वजह है? बस महंगाई की वजह से। और क्या इस वजह से कस्टमर आता है? कस्टमर बहुत कम हो गए, एक महंगाई की वजह से और ऊपर से गर्मी है इतनी शदीद, इसकी वजह से भी अब असर के बाद थोड़ी सी रूटीन बनती है काम की। जब कस्टमर आ भी जाए तो जब आप उसे कुछ चीज़ उसे पसंद आ जाती है, जब आप उसे कीमत बताते हैं तो उसका क्या सवाल होता है? इसका यही सवाल होता है कि बहुत महंगी है ये, अभी तो पहला सवाल भी यही, इसमें रियायत करें। फिर कितनी रियायत हो सकती है उसमें? उसमें रियायत मुश्किल होती है थोड़ी, क्योंकि पहले भी बहुत कम रखे हुए हैं। इसमें आपने जो सामान रखा हुआ है उसमें आपने वही आखिरी रखा हुआ है कि यार वही जो बचने हैं बस उतने ही बचने हैं? हाँ जी, जो एक ही दाम रखा है बस उसी पे ही गुजारा, क्योंकि पहले बहुत मुख्तसर रखा हुआ है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। कोई बेहतरी की गुंजाइश नजर आ रही है कहीं पर? इंशाल्लाह हो जाएगा, अल्लाह बेहतर करे। बजट आया है, लगता है कि कोई अवाम दोस्त बजट था या बस खाली अवाम को लॉलीपॉप दिया गया? खाली आवाम को लॉलीपॉप ही दिया गया, अभी तो कुछ नजर नहीं। मरियम साहबा भी कल कह रही थी कि बहुत अच्छा बजट दिया है, तनख्वाहें बढ़ा दी, मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दी। मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दी, उसको मिलेगा तो फिर है ना, अब जो दफ्तर में बैठा है उसके लिए तो फायदा है, उसको तो मजे, लेकिन आम के मुलाजिम को तो फायदा है, लेकिन जो प्राइवेट मुलाजिम है उसको कोई फायदा नहीं है। उसको कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके सामने हालात देख लो बाजार के कैसे हैं, आप घूम रहे हैं।
آپ کے سامنے وعلیکم السلام جی. ہاں جی بتائیں کیا حال ہے؟ اللہ کا آپ سنائیں موجودہ حالات کے حوالے سے. طبیعت ہے. اللہ کا شکر. یہ بجٹ سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک کے ہمارے لیے ہے, ہمارے لیے نہ صحیح ان دکانداروں کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ سب کے لیے بجٹ ہے. یہ جگہ اس حساب سے ہے. آپ بجٹ میں سرکاری تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں, اپنا ڈاک کے ریلیف کے اوپر 35%. ہاں وہ بالکل بات ہو چکی ہے. ہاں. وہ یہ جو کاروبار کرتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اپنی بچت کرنا. یہ جب تک اپنی بچت نہیں کریں گے اسی لیے ان کا منافع. یہ بچت تو تبھی ہوگی نا جب ان کے پاس کوئی سیل ہوگی, کوئی پرافٹ ہوگا, تبھی بچت ہوگی نا. یہ ان بھائی سے بات کرتے ہیں کہ بھائی سکون سے بیٹھے ہیں. السلام علیکم بھائی جان, کیا حال ہے آپ کے؟ شکر اللہ کا ٹھیک. مارکیٹ میں ہم جس شاپ پہ جا رہے ہیں ماشاءاللہ سارے دکاندار سکون سے بیٹھے ہیں, تو کیا وجہ اتنا سنسان کیوں بازار ہے آج کل؟ اتنی مہنگائی ہو رہی ہے بھائی, تو اس میں کیا ہوگا جی؟ کوئی بہتری کہیں پر, کوئی چانس کہ مارکیٹ کے حالات بہتر ہو جائیں؟ کیسے ہوں گے آپ بتا دو. حکومت کہتی ہے ہم نے بجٹ دیا ہے, امید ہے کہ حالات بہتر ہو جائیں گے. آپ بتا دو کیسے ٹھیک ہوں گے سر؟ سرکار بتائے گی, حکومت کہتی ہے بجٹ دیا ہے, اس بجٹ سے بہتر ہو جائیں گے. بجٹ دیا ہے, کیسا بجٹ دیا اس میں؟ وہ کہتے ہیں عوام دوست بجٹ ہے. بڑا عوام دوست بجٹ ہے جی. مجھے آپ بتا دو اس میں کون سا اس نے کوئی اچھا بجٹ دیا ہے جس میں یہ بہتری ہوگی کچھ بھی؟ وہ کہتے ہیں مزدور کی تنخواہ 32,000 کر دی ہے سرکاری. کون دے گا مجھے 32,000 کون دے گا مجھے بتاؤ؟ یہ ایک سوال ہے. بالکل کون دے گا؟ یہ حکومت دے گی 32,000؟ انہوں نے صرف اپنی تنخواہیں بڑھائی ہیں, پینشنیں بڑھائی ہیں ان کی, جو ان کے ملازمین ہیں گورنمنٹ کے, انہی کا بجٹ ہے سارا. غریب کا تو کوئی بجٹ نہیں ہے. باقی عام شہری کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. کوئی نہیں ہے بھائی, کوئی واسطہ نہیں ہے بھائی. ان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یار اگر 32,000 کا اعلان کیا تو دے گا کون 32,000؟ سرکار نے تو اپنے ملازمین کو 35% دے دی, باقی کسی کے پاس پیسے ہوں گے تو 32,000 دے گا نا. تو یہ آپ کے سامنے آ رہی ہے لوگوں کا موقف. ہم ذرا مزید بھی کوشش کرتے ہیں لوگوں سے جاننے کی کہ مزید لوگ کیا کہتے ہیں اور موجودہ حالات کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے. ہمیں اس مارکیٹ میں کچھ حد تک چہل پہل وہاں بھی ایسی تھی, یہاں بھی حالات ایسے تھے. ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم بھائی, کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ. بجٹ آیا ہے, کوئی لگتا ہے کوئی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی مارکیٹ کی, یا پھر آگے وقت آئے گا آگے کیا ہوتا ہے. ابھی فی الحال تو مہنگائی ویسے ہی ہے جی. عید کا سیزن ہے لیکن عید کا سیزن بھی خاموش ہے. ہم نے بالکل ختم ہوئے پڑا ہے. تینوں یہ روڈ ہم کور کر چکے ہیں, سب سکون سے بیٹھے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کسٹمر کی راہ تک رہے ہیں. بالکل ہم بھی ایسے دیکھ رہے ہیں, کہاں دور سے کوئی آئے تو حالات بہت ڈاؤن ہوئے پڑے ہیں. کچھ سال پہلے کیسے حالات ہوتے تھے؟ ان حالات تھے ماشاء اللہ, رش ہوتا تھا, بہت رش ہوتا تھا. اب مہنگائی کی وجہ سے سب کچھ کم ہوتا جا رہا ہے. جی مہنگائی کی وجہ سے بالکل لوگ بالکل نہیں آ رہے. مہنگائی کافی زیادہ ہے, مہنگائی کی وجہ سے کسٹمر نہیں آ رہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. اور پہلے یہ کہتے ہیں کہ حالات بہتر تھے, لیکن اب جو ہے مارکیٹ بلال دکھا سکتے ہیں کیسی ہے مارکیٹ, خالی ہے اور جہاں پر یہ صورتحال ہے. السلام علیکم بھائی جان, کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. بات کریں ہم بجٹ کے حوالے سے. ابھی حکومت نے بجٹ دیا ہے, سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ, عام مزدور کی تنخواہ میں بھی کہا ہے کہ 32,000 ہو جائے گی. تو کیا لگتا ہے کیسا بجٹ ہے؟ دیکھیں اللہ بہتری کرے گا, کوشش تو کر رہے ہیں. اللہ تو ہمیشہ بہتری کرتا ہے. امید رکھنی چاہیے اچھے کی. آپ کو بہتر امید ہے؟ جی بالکل ضرور. حکومت کہتی ہے عوام دوست بجٹ ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام دوست ہے, کچھ چیزیں سستی ہونا شروع ہوئی ہیں؟ جی بہتری آ تو رہی ہے. گھی وغیرہ سستا ہوا ہے؟ 50 روپے کم ملا ہے. کوئی آٹا وہ بھی کم مل رہا ہے. کم مل رہا ہے, مطلب کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ وہ والا بحران اب کچھ قدرے کم نظر آ رہا ہے. جی کم آ رہا ہے, آگے اچھے کی بہتری امید ہے. اچھے کی بہتری ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو پہلے ہم نے برداشت کی ہے مہنگائی, اب اس میں کچھ حد تک کمی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے. اب اللہ کرے یہ کمی جاری رہے, عام آدمی خوشحال ہو, عام آدمی اپنے گھر کی ضروریات پوری کر سکے, حکومت سے بھی شکوے اس کے کام ہو جائیں. اور جو معاشرے میں ہمیں غصہ زیادہ نظر آتا ہے اس کی وجہ لازمی بات ہے مہنگائی ہے. جب لوگوں کی جیب میں پیسے نہیں ہوتے, جب وہ اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکتے, جب وہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا پاتے, تو پھر وہ لازمی بات ہے غصے ہی ہوتے ہیں, ناراض بھی ہوتے ہیں. یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے. ہم ذرا آگے بات کریں گے, اب تو مارکیٹ بھی اختتام کر رہا ہے, ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان, وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ دعا ہے جی آپ کی. کیسے چل رہا ہے اسٹال آپ کا؟
नहीं जी, बिल्कुल ऐसे ही हालात हो रहे हैं जी, बिल्कुल माड़े हालात हो रहे हैं, बिल्कुल बेकार हालात हैं यहाँ तो। जो है ना जी, अब बिस्मिल्लाह की है मैंने, 40 रुपए की अब बिस्मिल्लाह की है। छोटा सा कारोबार है मेरा, देखे ना आप किन हालातों पे पहुंचा दिया पाकिस्तान को। किस पे एतमाद करें, किस पे ना करें, बात यह है कि कारोबार नहीं है, लोग शॉपिंग करने के लिए कम आ रहे हैं, खरीदते कम है। यकीन जाने बिल्कुल ही कम है, खरीदते भी कम है, निकलते भी कम है। अब बेहतरी की उम्मीद कहीं पर हो बाकी हो, किस पे एतमाद करें जी, किसको हुकूमत अच्छा पे? कहें, किसको बुरा कहें, बात यह है। इतना अच्छा बजट दिया है, अवाम दोस्त बजट दिया है। देखिए जी, अभी तो बजट आया है, ठीक है ना जी, अभी पता चलेगा हालात का। अभी तो आपके सामने बाजार नहीं है। रूस से हमने तेल भी मंगवा लिया है। तेल भी मंगवा लिया, ठीक है, आप मंगवा लें जो चीज़ मंगवानी है, लेकिन कारोबार तो हालात तो अच्छे हो ना। हालात बेहतर होंगे तभी सब कुछ बेहतर होगा। हाँ, सब कुछ बेहतर होगा, बात यह है। महंगाई ने अवाम को मुश्किल में डाल दिया। में तो ऐसे है कि जैसे इन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया है, यकीन जाने। आप जान रहे हैं कि क्या हालात हैं अवाम के और क्या तासुरात हैं लोगों के। वो ये कह रहे हैं कि महंगाई ने अवाम को परेशान कर दिया है। और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत चाहती है कि अवाम अगर सुख का सांस ले सके तो महंगाई में कमी करें, अशाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी करें, जो घी की कीमत में कमी हुई है इसमें मज़ीद कमी की जाए, जो आटा है उसकी कीमत में मज़ीद कमी की जाए, तभी जाकर अवाम कोई सुख का सांस ले सकती है। वरना जैसे भी हालात होंगे अवाम परेशान दिखाई देगी, क्योंकि जब लोगों की जेबों में पैसे नहीं होंगे तो वो बजट का क्या करेंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।